Hello everyone. Now we start our next topic, that is vapor pressure of liquid solution. Today we discuss vapor pressure of liquid solution. Liquid solution means solvent is liquid and solute can be liquid, solid or gas. We already discussed about the solubility of gas in liquid in the previous lectures as a Henry's law and its application. Now, our main focus is on liquid solution. So, firstly, we know about vapor pressure of liquid. जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे लिक्विड की तो वी मस्ट नो अबाउट वोलेटाइल लिक्विड. तो हम वोलेटाइल लिक्विड का केस लेंगे. वोलेटाइल लिक्विड मीन्स जो लिक्विड वेपर फेस में आ जाता है, जो इस लिक्विड के वेपर्स बनते हैं, वो लिक्विड होता है वोलेटाइल लिक्विड. तो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर. वोलेटाइल लिक्विड यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे वाटर. तो यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. कंसीडर अ लिक्विड और अ सॉल्यूशन टेकन इन एन इवैक्यूएटेड vessel at a pressure at a temperature T and is connected to a manometer. Here see that initially there will be no vapors above the surface of liquid. So level of mercury in the manometer is equal. But as you know, liquid molecules are moving with different speed in different directions. सभी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की सेम एनर्जी नहीं होती. सभी मॉलिक्यूल्स की एक जैसी एनर्जी नहीं होती. सम मॉलिक्यूल्स हैव लो एनर्जी, सम मॉलिक्यूल्स हैव हायर एनर्जीज. फर्स्टली दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव हायर एनर्जी comes on the surface and then they leave the surface of the liquid and comes above the surface of liquid and change into vapors. That process is known as evaporation. The conversion of liquid into vapors at a particular temperature is known as evaporation. As evaporation continue, more and more vapors goes above the liquid. As vapors are moving continuously in all direction, they strike on the walls of the beaker as well as again on the surface of the liquid. Then after some time, process of condensation will be start. Vapors again change into liquid. Then that process is known as condensation. At a particular instant, when both these process occurs at a equal rate, जितने मोलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर्स बनाएंगे उतने ही मोलिक्यूल बैक कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे. At that stage, a point of equilibrium will be reached in the solution. At equilibrium point, rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. अब जिस पॉइंट पे ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, उस स्टेज पे जो लिक्विड सरफेस है उसके ऊपर जो वेपर्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, सैचुरेटेड हो जाएंगे. और इन वेपर्स की वजह से लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज़ द वेपर प्रेशर विच इज़ डिनोटेड इन द मैनोमीटर बाय P. तो क्लियर है सबको. तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो वेपर्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट विल बी द वेपर प्रेशर. और इसको हम आल्सो नोन एज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. सैचुरेशन में आ चुके हैं वेपर्स, सैचुरेटेड हो चुके हैं. तो वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स जो प्रेजेंट है अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. या इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट वेपर प्रेशर क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड व्हेन both liquid and vapors are in equilibrium with each other. तो clear है. तो vapor pressure of a liquid. Now when we heat this solution, when we heat this liquid, then kinetic energy of liquid molecules increases and more number of liquid molecules change into vapors. More vapors will be formed, then vapor pressure will be increases. So higher the temperature,
greater is the vapor pressure. One factor which affect the vapor pressure is temperature. Now next, vapor pressure also depends on the intermolecular forces. Those liquids which have strong intermolecular forces between the liquid molecules, they will form less vapors. So vapor pressure will be less for that liquid. But those liquids in which intermolecular forces between liquid molecules are weak, then more and more liquid molecules easily change into vapors. So in that case there will be more vapor pressure formed by that liquid. More vapor pressure is formed by that liquid. For example, vapor pressure of acetone is greater than vapor pressure of ethanol, because in ethanol there will be a strong force of attraction between liquid molecules, that is hydrogen bonding. But in acetone, interaction will be dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction is weaker than the hydrogen bonding. So इथेनॉल के अंदर लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से लिक्विड जो है वेपर फेस में कम आएगा, तो वेपर प्रेशर जो होगा उस लिक्विड का कम होगा. तो वेपर प्रेशर जो है इथेनॉल का वो कम होगा एसीटोन से. तो क्लियर है. नाउ टुडे वी स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स बोथ, यहाँ पे हम क्या लेंगे, बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट्स आर लिक्विड एंड वी कंसीडर दिस एज अ वोलेटाइल कंपोनेंट्स. बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट्स आर वोलेटाइल कंपोनेंट्स. दोनों ही कंपोनेंट्स अगर वोलेटाइल होंगे, इन दैट केस वी स्टडी दैट लॉ, राउट्स लॉ. तो राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, हम इसको पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, राउट्स लॉ. हियर वी सी टू लिक्विड, liquid A, liquid B. In beaker 1, liquid A is present, और in beaker 2 liquid B is present alone. इस beaker में सिर्फ liquid A है, तो वेपर्स किसके होंगे, सिर्फ liquid A के. तो उसके वेपर प्रेशर को हम कैसे डिनोट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, PA नोट. इस beaker में सिर्फ क्या है, वोलेटाइल लिक्विड B, तो यहाँ पे वेपर्स किसके होंगे, सिर्फ लिक्विड बी के. तो इसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी, पीबी नोट. तो व्हेन वी मिक्स टू लिक्विड्स, टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, तो देखिए इसमें क्या होगा, इन अ सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, हेयर टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर अब किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. एज वी नो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, इन ए सॉल्यूशन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. तो सॉल्यूशन में जो दोनों लिक्विड्स अगर हम मिक्स करेंगे, टू वोलेटाइल लिक्विड्स, तो जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो सम के इक्वल होगा ऑफ इट्स इंडिविजुअल वेपर प्रेशर. तो इन दिस सॉल्यूशन वी अप्लाई Raoult's law. Raoult's law, in case of that solution, we state that in this solution Raoult's law states that vapor pressure due to liquid A, vapor pressure due to liquid A किसके इक्वल होगा, directly proportional to the mole fraction of A. Vapor pressure due to liquid B, vapor pressure due to liquid B is directly proportional to mole fraction of B. यहाँ से इसको डिफाइन करें तो राउल्ट्स लॉ, प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से हटाएं तो क्या बनेगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट व्हेन दे प्रेजेंट अलोन इन अ सिंगल बीकर. सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन. तो क्लियर है, these are the two equations in term of Raoult's law. तो Raoult's law को कैसे डिफाइन करेंगे, Raoult's law states that in a solution the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the vapor pressure of a component in a
solution is equal to the mole fraction of that component in the solution and multiplied by the vapor pressure of that components in pure state. Vapor pressure Pa is equal to Pa naught multiply XA, Pb is equal to Pb naught multiply XB. Clear है? As you know, in a solution total pressure is denoted by Pt. Then by applying Dalton's law, we know that total pressure in a solution is equal to vapor pressure of A plus vapor pressure of B. So according to Raoult's law, vapor pressure of in a solution equal to Pa naught multiply XA, vapor pressure of B in a solution equal to Pb naught XB. तो यहाँ से क्या हो गया, टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो गया, Pa नोट XA प्लस Pb नोट टू XB. एज यू नो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट ऑलवेज इक्वल टू 1. तो यहाँ से XA कितना हो गया, 1 माइनस XB. तो यहाँ से अगर हम XA की जगह इस इक्वेशन को मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की टर्म में लेके आए तो क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर Pa नोट XA की जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस XB प्लस Pb नोट XB. अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Pa नोट से मल्टीप्लाई करेंगे Pa नोट माइनस Pa नोट XB प्लस Pb नोट XB. तो अब यहाँ देखिए टोटल प्रेशर इन अ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, Pa नोट, यहाँ से देखिए XB इसमें भी है और इस टर्म में भी है, तो यहाँ से ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, Pa नोट प्लस XB क्या हो जाएगा, Pb नोट माइनस Pa नोट. अगर हम इसमें यहाँ पर XB को रखते 1 माइनस XA तो फिर इक्वेशन क्या बन जाती है, यहाँ पे सारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी, A चेंज इन टू B. तो यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, Pb नोट प्लस XA, Pa नोट माइनस Pb नोट. तो दीज आर द टू इक्वेशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. These two equations are very very important in case of a solution which is made up of two volatile liquids. तो क्लियर है सभी को राउल्ट्स लॉ. तो यहाँ से आप ये देखिए इसमें Pa नोट Pb नोट, these are the constant, these have the constant values at a particular temperature. So total pressure in a solution is directly proportional to mole fraction of either one of the component, either XB और XA. तो यहाँ से देखिए आप, तो both Pa नोट and Pb नोट are constant at a particular temperature. So vapor pressure, total vapor pressure of a solution is a linear function of mole fraction. तो जैसे कि ये इक्वेशन है तो ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का. तो टोटल वेपर प्रेशर जो है लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ आइदर XA और XB. तो ग्राफिकली हम इस इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इस ग्राफ को देखिए. इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर. तो इसमें आप ये देखिए यहाँ पर वेयर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ 1, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज़ 0. एज वी नो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी 1. When XA is 1 then XB 0. यहाँ पर XB 0 है, इट मीन्स यहाँ पर ओनली सॉल्यूशन में कौन सा लिक्विड है, लिक्विड A ओनली. तो लिक्विड B है ही नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी. तो सॉल्यूशन कंटेन ओनली लिक्विड A, वोलेटाइल लिक्विड A. तो वेपर्स किसके होंगे, सिर्फ लिक्विड A के. तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, प्योर A. तो इस पॉइंट से यहाँ पे हमारा क्या है, जब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B का 0 है तो ओनली लिक्विड A प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो उसका वेपर प्रेशर हो गया Pa नोट. तो एज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए अगर मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे B के बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन B के बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ B इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज लीनियरली and it reaches to maximum where XB 1 and XA 0. मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ पर 0 है, तो इट मीन्स यहाँ पर अब लिक्विड में A प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, कंपोनेंट B. तो यहाँ पर सिर्फ
प्योर बी का वेपर प्रेशर है और यहाँ पर सिर्फ प्योर ए का वेपर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड बी इंक्रीजेज. As we study this graph from right to left, as mole fraction of A increases from 0 to 1, as mole fraction of A increases, then vapor pressure due to liquid A increases linearly and reaches to maximum. So both these lines 1 and 2 represent the vapor pressure of A and vapor pressure of B in the solution. अगर हमें ये दोनों लाइन्स अच्छे समझ आ रही हैं, देन वी ईजिली सोल्व द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय ड्राइंग रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस बी. तो क्लियर है? तो यहाँ पे आप ये देखिए दोबारा से कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर जो है बी का साथ साथ बढ़ रहा है. और राइट टू लेफ़्ट अगर जा रहे हैं तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर जो है ए का वो बढ़ रहा है लीनियरली. तो क्लियर है? तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, or this is a graphical representation of Raoult's law for volatile liquids. Now note some important points. This Raoult's law is applicable only when two components, volatile components, when they mix together they form a homogeneous mixture, means they form a solution. The completely miscible liquids के लिए applicable है this Raoult's law. 3 types के होते हैं liquid solution. First completely miscible, second partially miscible और third immiscible. Raoult's law is applicable only for those components for volatile liquids which are completely miscible with each other and then they form a homogeneous mixture. Clear है? Next, in this pressure mole fraction graph, XA और XB denote mole fraction of liquid A and mole fraction of liquid B. Here vapor pressure due to liquid B is slightly greater than vapor pressure of liquid A because liquid B is more volatile than liquid A, so its vapor pressure is slightly greater than liquid A. ठीक है? और नेक्स्ट देखिए those liquid pairs, now important note that point, those liquid pairs which obey this Raoult's law are known as ideal solution. Those liquid pairs which obey Raoult's law, vapor pressure of A is equal to PA naught XA और another component के लिए vapor pressure is equal to PB naught XB. Those liquid which obey these equations of Raoult's law are known as ideal solution and such pairs are very limited. We discussed in the next lecture these solution, these type of solution, ideal solution or non-ideal solution. So now one numerical based on this equation. देखिए at a given temperature vapor pressure in millimeter of Hg of a solution of two volatile liquid A and B is given by equation total pressure is equal to 120 plus 80 XB, where XB is the mole fraction of B, liquid B. Calculate the vapor pressure of pure A and pure B. तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, प्योर बी, और हमें इक्वेशन गिवन है एक टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 120 प्लस 80 XB. अगर हम इस इक्वेशन को रिलेट करें राउल्ट्स लॉ इक्वेशन से जो कि होती है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA नोट प्लस PB नोट माइनस PA नोट XB. तो अब ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है. इसमें देखिए आप इसको अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो हियर वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर ए कितना हो गया 120 और ये वाला जो फैक्टर है PB नोट माइनस PA ये कितना हो गया 80 और ये XB. तो हम इसको अगर रिलेट करें इक्वेट करें तो यहाँ से वेपर प्रेशर जो है प्योर ए का कितना आ गया
120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और PB नोट माइनस PA नोट किसके इक्वल है 80। हेयर PA नोट कितना है 120, तो यहाँ से वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर B कितना आ गया 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो क्लियर है। तो कई बार जो ये राउल्ट्स लॉ की इक्वेशंस होती हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आप इसको ईजिली रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई गिवन इक्वेशन है तो उसको राउल्ट्स लॉ इक्वेशन से आप इक्वेट कीजिए और देन सोल्व द क्वेश्चन। सो क्लियर है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट the Raoult's law for a non-volatile solute, and then we discuss about ideal solution and non-ideal solution. Thank you.